Good evening, my dear lovely students. Welcome back to your English class. Now, students, in our today's English class, we are going to start a new lesson. बच्चों, आज हम अपने इंग्लिश की क्लास में इंग्लिश का न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे. And do you know what is the name of the lesson? See, it's lesson number 5 and the name of the lesson is Trees Help Us to Stay Alive. What is the name? Trees help us to stay alive. Means trees हमें help करती है alive यानी कि जिंदा रहने के लिए. Now how tree help us to stay alive? Trees हमें कैसे help करेगी जिंदा रहने के लिए? So to know about this, how trees help us to stay alive, we will see in the lesson. And for this we have to read the lesson. इसे देखने के लिए, understand करने के लिए हमें lesson को read करना पड़ेगा, right? So without wasting much of our time, come we will start our today's lesson. But before starting our lesson, let me tell you one thing. When I will read the lesson, जब मैं lesson read करूँगी यानी कि पढ़ूँगी, what you will do? अब क्या करोगे? You will not look here and there. आप इधर उधर नहीं देखोगे. And you will keep your finger on the line. Finger आप अपनी line पे रखोगे. Why finger on the line? Because this will help you to know that where I am reading. ये आपको help करेगा ये देखने के लिए कि मैम कहाँ read कर रही है, कौन सा word read कर रही है और उसको कैसे pronounce कर रही है. मतलब pronounce करना मतलब कैसे बोल रही है. Understood? So come let's start our today's lesson. Trees help us to stay alive. Aunt Mala is planting a mango sapling in her courtyard. Now Aunt Mala. Aunt means auntie. You are having na auntie nearby your house. आपके घर के आसपास रहती है ना आंटी? Yes. So what Aunt Mala is doing? Aunt Mala is planting a mango sapling. Planting means, planting का मतलब क्या होता है? एक प्लांट को सॉइल में प्लांट करना. यू कैन सी इन द पिक्चर. सी पिक्चर में देखो आंटी क्या कर रही है, छोटे से प्लांट को सॉइल में यानी कि जमीन में प्लांट कर रही है. प्लांट करना मतलब गाड़ रही है. क्लियर? प्लांटिंग अ मैंगो सैपलिंग. नाउ मैंगो सैपलिंग. सैपलिंग मीन्स व्हाट? अ यंग ट्री. सैपलिंग का मतलब होता है छोटा सा ट्री, है ना? देखिए पिक्चर में. सी इन द पिक्चर. See, it is a very small young tree. So, Aunt Mala is planting mango sapling in her courtyard. Courtyard means the area you have in front of the house. अपने घर के सामने जो एरिया होता है जिसको हम हिंदी में आंगन बोलते हैं उसको हम बोलेंगे courtyard इंग्लिश में. Understood? So Aunt Mala is planting a mango sapling in her courtyard. Aunt Mala अपने घर के आंगन में क्या गाड़ रही है? मैंगो का छोटा सा सैपलिंग यानी कि छोटा सा पौधा. मीना एंड Hamid are watching her. Now Meena and Hamid, what they are doing? They are watching. Watching means seeing. मीना और हमिद क्या कर रहे हैं? आंट माला को देख रहे हैं कि आंट माला क्या कर रही है. Now let's see what Meena is saying. Which sapling are you planting, aunt? Now what Meena is saying? मीना क्या बोल रही है? Which sapling are you planting? Which sapling means आप कौन सा पौधा प्लांट यानी कि गाड़ रही हो आंटी. Who is asking? कौन बोल रहा है? मीना. Now aunt. Now what aunt is replying? मीना के क्वेश्चन का आंटी क्या रिप्लाई करती है? It is a mango sapling. Now what auntie is saying? आंटी क्या बोल रही है? It is a mango sapling. ये मैंगो का छोटा सा यंग पौधा है. It will grow into a big tree after a few years. Then it will give you sweet mangoes. Don't you like mangoes? Now what auntie is saying? That it is a young mango sapling. ये छोटा सा मैंगो का प्लांट है. After few years यानी कि कुछ साल बाद this plant will grow into a huge tree. ये छोटा सा प्लांट बड़े होके एक ह्यूज ट्री में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा. जैसे आप छोटे हो, अभी आप छोटे हो तो कुछ साल बाद आफ्टर फ्यू इयर्स यू विल ग्रो इनटू अ बिग गर्ल. आप बिग गर्ल में
ग्रो कर लोगी। इन सेम दैट वे ये छोटा सा प्लांट भी, अभी हम छोटा सा प्लांट कर रहे हैं, बट कुछ साल के बाद ये प्लांट भी बड़ा होते 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 एक ह्यूज ट्री में बदल जाएगा। अंडरस्टूड? सो यू विल ईट द मैंगोज। हु इज सेइंग? आंटी। आंटी क्या बोल रही है? पेड़ बड़ा होने के बाद इसके जो स्वीट स्वीट मैंगोज है वो आप खाओगे। डोंट यू लाइक मैंगोज? आपको मैंगो पसंद है ना? ऐसा कौन पूछ रहा है? आंटी पूछ रही है मीना को। यू लाइक मैंगोज? सो व्हाट मीना इज रिप्लाइंग? आई लाइक देम सो मच। व्हाट मीना इज सेइंग? आई लाइक देम सो मच। हाँ, मुझे वो बहुत पसंद है। यानी कि मीना को मैंगोज बहुत ज़्यादा पसंद है। Now what Hamid is saying? But my teacher planted a neem tree in the school. What kind of fruit will it yield? Sweet or sour? Now what Hamid is saying? Hamid क्या बोल रहा है? My teacher planted a neem tree. हमीद की जो टीचर है उसने स्कूल में नीम ट्री प्लांट किया है। Now what kind of fruit it will give? Hamid is saying that, हमीद ये बोल रहा है कि हमारे टीचर ने स्कूल में नीम ट्री प्लांट किया है। अब नीम ट्री कौन से टाइप का फ्रूट देगा? स्वीट, मीठा या सॉर, खट्टा, कड़वा? ये कौन बोल रहा है? हमीद। Now what auntie is replying? आंटी हमीद के क्वेश्चन का क्या रिप्लाई करती है? नीम ट्री हैज मेडिकल प्रॉपर्टीज। नाउ व्हाट आंटी इज सेइंग? आंटी क्या रिप्लाई कर रही है? नीम ट्री हैज अ मेडिकल प्रॉपर्टीज। नाउ मेडिकल प्रॉपर्टीज मीन्स क्योरिंग क्वालिटीज। व्हाट? मेडिकल प्रॉपर्टी मीन्स क्योरिंग क्वालिटीज। मतलब नीम ट्री है एक मेडिसिनल प्लांट। नीम ट्री क्या है? एक मेडिसिनल प्लांट है। जो नीम ट्री में कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है जो कि अपने जो डिसीजेस है उसको क्योर करने में हेल्प करती है। इट्स लीव्स एंड फ्रूट्स आर यूज्ड टू क्योर स्किन डिसीजेस। नाउ इट्स लीव्स एंड फ्रूट्स, हुज लीव्स? नीम ट्रीज लीव्स। नीम ट्री के फ्रूट्स और लीव्स क्या करती है? क्योर करती है स्किन डिसीजेस। अपने को अगर कोई स्किन डिसीज हो गई है, जैसे कोई रिएक्शन हो गया है या कुछ और हो गया है, तो आपकी मम्मा करती है ना, गर्म पानी में नीम के पत्ते डाल के फिर आपको बोलती है नीम के पानी से नहाओ। यस, सो दिस हेल्प्स टू क्योर स्किन डिसीजेस। अपने स्किन में डिसीजेस अगर कुछ हो गई है, स्किन को हेल्दी रखना है तो नीम के पत्ते के पानी से नहाना चाहिए। ऐसा कौन बोलता है? मम्मी बोलती है। नाउ व्हाट मीना इज सेइंग? Does every tree have one or the other use? What Meena is saying? Every tree मतलब हर ट्री में एक नहीं तो एक से ज़्यादा यूज है। Now what auntie is replying? Auntie, yes, but all the trees give us oxygen. It is the most important thing for us to stay alive. What auntie is replying? Auntie क्या reply कर रही है? All trees give us oxygen. सारे ट्रीज क्या करते हैं? ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स को क्या देते हैं? ऑक्सीजन। एंड ऑक्सीजन इज इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अस टू स्टे अलाइव। ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स और प्लांट्स, इन सब को अलाइव रहने के लिए यानी कि जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है? ऑक्सीजन। एंड हु गिव्स अस ऑक्सीजन? ऑक्सीजन हमें कौन देता है? प्लांट्स, ट्रीज हमें ऑक्सीजन देती है जिंदा रहने के लिए। Hamid, wonderful, but how? Who is saying? Hamid. Hamid क्या बोल रहा है? Wow, wonderful, but कैसे? How? Auntie, we need to take oxygen in our breath. Oxygen burns the blood in the body and produces energy and carbon dioxide. We need energy in every function of the body part. Now what auntie is saying? We need to take oxygen in our breath. अपने ब्रीथ में ऑक्सीजन कंपलसरी होता है और हमें ऑक्सीजन ही चाहिए ब्रीदिंग के लिए। ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन बर्न्स द फूड इन द बॉडी। ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जो फूड होता है उसको बर्न करती है और बर्न करने से उसमें से जो एनर्जी मिलती है वो हमारे बॉडी में यूज होता है। एंड वी रिलीज
कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि हम एनर्जी, ऑक्सीजन और एनर्जी लेते हैं और क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। वी नीड एनर्जी इन एवरी फंक्शन ऑफ द बॉडी। हमें बॉडी के कोई भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए होता है, एनर्जी। और वो किससे मिलती है हमें, ऑक्सीजन और फूड से। नाउ व्हाट मीना इज सेइंग, मीना, बट व्हाट इज द यूज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ व्हाट मीना इज सेइंग, मीना क्या बोल रही है, व्हाट इज द यूज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या यूज है, वो किस लिए यूज होती है। नाउ व्हाट आंटी इज रिप्लाइंग, इट इज यूजलेस फॉर अस, सो वी एक्सहेल इट आउट इन द एयर। Trees take in carbon dioxide, make their food and give out oxygen. Now what auntie is saying? Auntie is saying that it is useless for us, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो ह्यूमन बींग्स के लिए यूजलेस है, मतलब किसी काम की नहीं है। सो वी एक्सहेल इट आउट इन द एयर, मतलब हम जब सांस छोड़ते हैं अपनी बॉडी से तो हम क्या छोड़ते हैं, कौन सी गैस रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि वो हमारे लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। वो किसके लिए यूजफुल है, ट्रीज के लिए। क्यों ट्रीज के लिए यूजफुल है, क्योंकि ट्रीज कार्बन डाइऑक्साइड से अपना खाना बनाती है। दे मेक देयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड दे गिव आउट ऑक्सीजन। जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं वैसे ही प्लांट्स वो कार्बन डाइऑक्साइड से अपना खाना बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। अंडरस्टूड। नाउ व्हाट हमीद इज सेइंग, अब हमीद क्या बोल रहा है, सो वी अगेन गेट ऑक्सीजन फ्री ऑफ कॉस्ट। नाउ व्हाट हमीद इज सेइंग, वी अगेन गेट ऑक्सीजन फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि हमें ऑक्सीजन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, बिना कैसे किसी पैसे के, मतलब हमें पैसे देना नहीं पड़ता है ऑक्सीजन के लिए, वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। नाउ व्हाट मीना इज सेइंग, एंड द ट्रीज शेयर देयर फूड आल्सो विथ अस। नाउ व्हाट मीना इज सेइंग, ट्रीज शेयर देयर फूड विथ अस, यानी कि ट्रीज अपना खाना हमारे साथ शेयर करते हैं। शेयर करना मतलब बांटते हैं। नाउ अगेन हमीद, we can harvest grains and vegetables in 3 or 4 months and trees take years to give fruits. Now what Hamid is saying, हमीद क्या बोल रहा है कि हमें grains and vegetables यानी कि हमें अनाज और वेजिटेबल सब्जियां ग्रो करने में 3 to 4 months 3 से 4 महीना लग जाता है। and trees take years to give fruits, यानी कि trees सालों यूज कर लेते हैं हमें फ्रूट्स देने के लिए। नाउ हु इज सेइंग, कौन बोल रहा है, हमीद। नाउ आंटी, द प्लांट्स आर ऑफ 3 टाइप्स, हर्ब्स, बुशेस एंड ट्रीज। नाउ व्हाट आंटी इज सेइंग, आंटी क्या बोल रही है, प्लांट्स क्या है, 3 टाइप्स के हैं, है ना। नाउ व्हाट आर दोस 3 टाइप्स, फर्स्ट इज हर्ब्स, सेकेंड इज बुशेस एंड थर्ड इज ट्रीज। तो प्लांट ये 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट वी विल सी हर्ब्स। हर्ब्स लिव few months, bushes live for a few years, but trees lives for many years. Now what auntie is saying, herbs क्या है, few months यानी कि कुछ महीने के लिए जिंदा रहते हैं। bushes live for few years, bushes कुछ सालों के लिए जिंदा रहते हैं। but trees live for many years, जो trees होते हैं ना वो सालों साल जिंदा रहते हैं। they live for many years. they are large and don't die easily. now trees are large, trees क्या होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। and they don't die easily, मतलब वो easily मरते नहीं हैं, उन्हें सालों साल जीने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। और जो सालों साल जीते हैं तो वो डाई यानी कि इजीली मरते नहीं है। मोस्ट ऑफ द ट्रीज हैव thousands of leaves, so trees are the most useful plants and they are forever. Now many of the trees have different kinds of leaves, right? And
ट्रीज आर द मोस्ट यूजफुल प्लांट्स। ट्रीज क्या है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और इम्पॉर्टेंट प्लांट्स है, क्योंकि ट्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, जो ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत यूजफुल होता है। एंड ट्रीज आर फॉर एवर। ट्रीज हमेशा के लिए रहते हैं। दे नेवर डाई। वो मरते नहीं हैं। नाउ टेक योर पेज नंबर 33. नाउ व्हाट मीना इज सेइंग, the cows, buffaloes and goats eat leaves and give us milk. The bulls and camels feed on leaves and then they work for us. Now what Meena is saying? Meena क्या बोल रही है? The cows, buffaloes and goats eat leaves and cows यानी कि गाय, buffaloes यानी कि बैल और goats यानी कि बकरी, ये क्या खाते हैं? लीव्स खाते हैं। और इन ह्यूमन बींग्स को यानी कि हमें क्या देते हैं? दे गिव अस मिल्क। वो हमें दूध देते हैं। अंडरस्टूड? द बुल एंड कैमल्स फीड ऑन लीव्स। जो बुल्स और कैमल्स होते हैं, है ना, वो किस पे फीड होते हैं? वो किस पे रहते हैं? लीव्स पे। क्योंकि अगर वो लीव्स नहीं खाएंगे तो उन्हें एनर्जी कहाँ से मिलेगी, और उन्हें एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो हमारा काम कैसे करेंगे? राइट? सो बुल्स एंड कैमल्स फीड ऑन लीव्स। वो लीव्स खाते हैं। देन दे वर्क फॉर अस। लीव्स खाने के बाद वो किसके लिए काम करते हैं? यस, ह्यूमन बींग्स यानी कि हमारे लिए। वो हमारे लिए काम करते हैं। दे वर्क फॉर अस। नाउ व्हाट हमीद इज सेइंग, वी गेट वुड्स फ्रॉम ट्रीज फॉर मेकिंग फर्नीचर्स, बैट्स एंड पेंसिल्स एक्सेट्रा। और हमीद इज सेइंग, हमीद क्या बोल रहा है? वुड्स यानी कि लकड़ियाँ हमें ट्रीज से मिलती है ना, ट्रीज से हमें लकड़ियाँ मिलती है ना। एंड फ्रॉम दैट वी आर मेकिंग फर्नीचर्स। और लकड़ियों से हम क्या बनाते हैं? फर्नीचर्स लाइक सोफा, टेबल, चेयर, राइट? एंड बैट्स, बैट मीन बैट बॉल। सो बैट इज ऑल्सो मेड फ्रॉम वुड। बैट भी किससे बनता है? वुड से यानी कि लकड़ी से बनता है। पेंसिल, द पेंसिल वट यू आर यूजिंग इज ऑल्सो मेड अप ऑफ वुड। जो पेंसिल आप यूज करते हैं लिखने के लिए, वो भी वुड यानी कि लकड़ी से बना होता है। नाउ हु इज सेइंग दिस? हमीद। ये कौन बोल रहा है? हमीद बोल रहा है। नाउ व्हाट आंटी इज सेइंग, एंड पेपर ऑल्सो कम्स फ्रॉम बैम्बू ट्री, सम ट्री ऑल्सो गिव गम। नाउ व्हाट आंटी इज सेइंग, आंटी क्या बोल रही है? पेपर, पेपर भी हमें ट्री से मिलता है। कौन से ट्री से? बैम्बू ट्री से। एंड सम ट्रीज गिव ऑल्सो गम। कुछ ट्रीज हमें गम भी देते हैं। गम मीन्स फेविकॉल टाइप, राइट? गम, बट फेविकॉल नहीं, दूसरे टाइप का गम। तो ट्रीज ऑल्सो गिव अस गम। नाउ व्हाट मीना इज सेइंग, आवर टीचर टोल्ड अस दैट ट्रीज ब्रिंग रेन्स, हाउ डज इट हैपन्स? नाउ व्हाट मीना इज सेइंग, मीना क्या बोल रही है कि उसकी जो टीचर है उसने बोला है कि ट्रीज ब्रिंग रेन्स, जो झाड़ होते हैं, ट्रीज होते हैं, वो बारिश लाते हैं। बट हाउ डज इट हैपन? मतलब ये कैसे हो सकता है? हाउ डज इट हैपन्स? नाउ व्हाट आंटी इज रिप्लाइंग, द लीव्स ऑफ द ट्रीज गिव्स out a lot of water vapor into the air. It makes the air cool. The cool air runs over the forest and cools the rain clouds and they start to rain. Now, what auntie is saying, the leaves of the trees give out lot of water vapor. जो trees के जो leaves है यानी कि पेड़ के जो पत्ते हैं, वो बहुत सारे water vapors release करते हैं air में। water vapors मतलब जो पानी के जो स्टीम निकलती है उसको वाटर वेपर बोलते हैं। तो ट्रीज में से जो लीव्स है, ट्रीज की लीव्स में से क्या रिलीज होता है? वाटर वेपर। ठीक है, वो वेपर्स यानी कि स्टीम कहाँ जाती है? वो एयर में जाती है। अब ट्रीज के लीव्स एकदम ठंडे ठंडे होते हैं तो वो वाटर वेपर रिलीज करती है तो वो भी ठंडे होते हैं। एंड इट मेक्स द एयर कूल। जो ठंडे वेपर्स निकलते हैं तो वो ठंडे वेपर से एयर यानी कि हवा क्या है? कूल हो जाती है। कूल मीन्स ठंडी हो जाती है। द कूल एयर रन्स ओवर द फॉरेस्ट। ना वो जो ठंडी हवा है फॉरेस्ट यानी जंगल से होते हुए, एंड कूल्स द रेन क्लाउड्स, जंगल से होते हुए बादलों में, क्लाउड्स यानी कि बादल में जाते हैं। एंड देन द क्लाउड्स ऑल्सो टर्न्स into a cool cloud.
वो ठंडी हवा से जो क्लाउड्स होते हैं, जो बादल होते हैं, वो भी एकदम ठंडे हो जाते हैं और पानी से भर जाते हैं। एंड देन दे स्टार्ट टू रेन। जब बादल हम भर जाते हैं पानी से तो वो ठंडे हो जाते हैं, और फिर वो पानी से भरने के बाद वो क्या करते हैं, दे स्टार्ट टू रेन, यानी कि बारिश स्टार्ट हो जाती है, बादल गरजना चालू हो जाते हैं और बारिश स्टार्ट हो जाती है। Hamid, what is a forest? Now, who is asking this? Hamid. What he is asking, what is a forest? यानी कि forest क्या है? Now, auntie is replying, a forest is a big crowd of many types of trees. Now, forest, what is forest? Forest क्या है? Forest एक big crowd है. Big crowd means, crowd मतलब भीड़. Crowd को क्या बोलते हैं? भीड़. Group of थिंग्स, ग्रुप ऑफ एनिमल्स और ग्रुप ऑफ पीपल्स, है ना. तो क्राउड क्या हो गया? भीड़ हो गई. तो फॉरेस्ट क्या है? जहाँ पर बिग क्राउड ऑफ मैनी टाइप्स ऑफ ट्रीज, यानी कि जहाँ पर ट्रीज का क्राउड है, ट्रीज की भीड़ है, बहुत अलग अलग टाइप्स के ट्रीज होते हैं. ठीक है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर. पिक्चर में आप देख सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज आर देयर. सो देर आर क्राउड ऑफ ट्रीज, यानी कि ट्रीज की क्राउड है, ट्रीज की भीड़ है. कहाँ? जंगल में. द रूट्स ऑफ द ट्रीज होल्ड टुगेदर द सॉइल. नाउ द रूट्स ऑफ द ट्रीज, रूट्स मीन्स द जड़े. रूट्स यानी कि पेड़ की जो जड़ें होती है वो सॉइल को होल्ड करके रखती है. होल्ड करके रखना मीन्स सॉइल को पकड़ के रखती है. इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ रेन वाटर. नाउ इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ रेन वाटर. जो जड़ें होती है, वो जो बारिश का पानी फ्लो होता है, बह के आता है, उसको जड़ें है क्या करती है? कंट्रोल करती है. बट थॉटलेस पीपल आर कटिंग डाउन द फॉरेस्ट. मीन्स थॉटलेस पीपल्स मीन्स जो बेवकूफ़ लोग हैं, जिन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या कर रहे हैं? बहुत लार्ज अमाउंट पे, यानी कि बहुत बड़े पैमाने पे ट्रीज को कट कर रहे हैं अपने यूज के लिए, है ना. दे आर कटिंग डाउन द ट्रीज. सो द फ्लो ऑफ रेन वाटर फ्लड्स लार्ज एरिया. जैसे कि मैन ट्रीज को कट कर दे रहे, तो जड़ें क्या है? सॉइल से निकल जा रही है. तो जड़ें अगर निकल जाएगी तो वो फ्लो ऑफ वाटर, यानी कि पानी का जो बहाव है, उसको कैसे कंट्रोल करेगी? और पेड़ नहीं रहेगा और पानी का बहाव ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा? वाटर फ्लड्स. वाटर फ्लड्स मीन्स सुनामी आ जाएगी. तो वाटर फ्लड्स इन लार्ज एरिया मतलब बहुत ज़्यादा पानी बहुत सारे एरिया में बह जाएगा, क्योंकि पेड़ ही नहीं रहेंगे, तो पेड़ों की जड़ें ही नहीं रहेंगी, तो पानी को कौन कंट्रोल करेगा? तो सुनामी आएगी जाएगी. सो फ्लड एंड फास्ट विंड्स टेक वे the upper layer of the soil which is fertile. अगर पेड़ नहीं रहेगा, पेड़ की जड़ें ही नहीं रहेगी, तो फ्लड यानी कि सुनामी आएगी और तेज हवाएं चलेगी. ठीक है. फास्ट विंड्स मीन्स तेज हवा. दैट टेक अवे द अपर लेयर ऑफ द सॉइल. तेज हवा से सॉइल यानी कि जमीन का जो अपर लेयर होता है, जो ऊपर का लेयर होता है, वो फर्टाइल नहीं रहती है. क्लियर? नाउ व्हाट मीना इज रिप्लाइंग. So the trees help us to stay alive in everywhere. Now what Meena is saying? मीना क्या बोल रही है कि हमें ट्रीज हमें अलाइव यानी कि जिंदा रहने के लिए हर जगह से हेल्प करती है. Understood? Now what auntie is saying? Trees not only help mankind, they provide natural shelter and food for the most of the birds and animals on earth. Now what auntie is saying? आंटी क्या बोल रही है? ट्रीज नॉट ओनली हेल्प मैनकाइंड, यानी कि ट्रीज सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं ज़रूरी है. दे प्रोवाइड नेचुरल शेल्टर, यानी कि ट्रीज कुछ कुछ एनिमल्स के लिए शेल्टर, यानी कि जो है छत जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो प्रोवाइड करती है. कुछ एनिमल्स का घर भी होता है. Now they provide shelter and food for the most of the birds and animals on earth. यानी कि ट्रीज बहुत सारे एनिमल्स के लिए छत और खाना दोनों का काम करती है अर्थ में, क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स क्या करते हैं? जंगल में रहते हैं, लीव्स खाते हैं. फॉर एग्जांपल एलिफेंट, डियर, ज़ीब्रा, जिराफ, मंकीज,
दे लिव इन फॉरेस्ट, ये सब कहाँ रहते हैं, जंगल में रहते हैं। और क्या खाते हैं, लीव्स यानी कि पत्ते, घास फूस खाते हैं। सो फॉरेस्ट इज देयर होम, फॉरेस्ट ये एनिमल्स का होम है यानी कि घर है। Now what Hamid is saying, that is why we celebrate the forest festival or Van Mahotsav every year. We plant many trees then. Now what Hamid is saying, Hamid क्या बोल रहा है, इसलिए हम फॉरेस्ट फेस्टिवल यानी कि वन महोत्सव हर साल सेलिब्रेट करते हैं और बहुत से प्लांट्स को, ट्रीज को वहाँ बिल्ड करते हैं, मतलब गाड़ते हैं जमीन में। Now auntie is saying, Van Mahotsav is an awareness program. Now what auntie is saying, Van Mahotsav is an awareness program, यानी कि वन महोत्सव एक अवेयरनेस प्रोग्राम है। अवेयर करना मीन्स लोगों को जागरूक करना कि ट्रीज बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, अर्थ के लिए। तो इसका एक प्रोग्राम होता है जिसको वन महोत्सव बोलते हैं। We can plant trees any time of the year. Now we can plant trees यानी कि हम ट्रीज को प्लांट कर सकते हैं, मतलब गाड़ सकते हैं कोई भी साल में। ऐसा कोई परफेक्ट टाइम नहीं है कि आप इसी साल में प्लांट को गाड़ो या अभी गाड़ो या 10 साल बाद गाड़ो। यू कैन प्लांट ट्रीज एनी टाइम एनी ईयर, मतलब कोई भी टाइम में, कोई भी साल में आप ट्रीज को प्लांट कर सकते हो। नाउ मीना एंड हमीद, अब मीना और हमीद दोनों क्या बोल रहे हैं, बट वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर सैपलिंग्स। नाउ व्हाट दे आर सेइंग, वो क्या बोल रहे हैं कि हमें हमारे सैपलिंग का, सैपलिंग मतलब छोटे से प्लांट का बहुत ध्यान रखना चाहिए। वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर सैपलिंग। नाउ व्हाट आंटी इज सेइंग, एंड वी मस्ट ऑल्सो टेक केयर ऑफ अदर ट्रीज टू। नाउ व्हाट आंटी इज सेइंग, आंटी क्या बोल रही है, अपने छोटे से प्लांट के साथ साथ हमें बाकी सारे प्लांट्स को, ट्रीज का ध्यान रखना चाहिए। Understood? So my dear students, here we end our today's lesson. I hope you all have understood it. So it's the time to take leave. I'll see you in the next video. Till that time, stay safe, stay home, stay healthy, be happy. See you soon. Bye bye.